Hello everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. Friends, अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, like you are the first time अगर आप मेरा वीडियो आज वॉच कर रहे हैं, तो मैंने इस चैनल पे 25 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें कि 20 से अबव वीडियोस आर ओनली ऑन फार्मासिस्ट, कि आप यूएई में आके, दुबई में आके फार्मासिस्ट की जॉब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैसे और क्या क्या करना होगा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, एंड उसके अलावा भी मैंने कुछ और एक दो जॉब कैटेगरीज इसमें ऐड की हुई हैं अपने वीडियोस में, जो कि है फार्मेसी रिलेटेड. इफ़ यू हैव डन योर डिग्री in pharmacy related anything, your MBA or your postgraduate B.Pharm, M.Pharm in pharmacy related anything, then you can choose the other job sectors also for you. So अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे उन पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा. उन वीडियो से आपको काफ़ी पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं उन व्यूअर्स के जो कि अभी नए हैं या फिर जिन्होंने मेरा वो वीडियो से फर्स्ट टाइम देखा है, एंड देन दे आस्क फॉर अदर प्रोसेस एंड other related things. So I would request you all who are new to my channel to please go and look and watch the other videos on my channel. तो आपको सारी चीज़ें and concept उसका clear हो जाएगा. So friends, please subscribe to my channel, share with your friends and like if you find the video and the content helpful. So as you all know, I make videos on for our pharmacy professionals all over the world. Whoever can see and whoever want to come to Dubai and UAE and make their career in pharmaceuticals. There are different categories, there are different sectors, there are different jobs, there are different positions. So friends, today's video is going to be very interesting, as this video is about what are the jobs, what are the positions, in what all sectors we have job for our pharmacy professionals, for the people who have done graduation or post-graduation or their PhDs in pharmaceutical related any field, pharmaceutical related any category, no, like in any subject and all, because till the graduation we all study the same thing, but as we go and move up to our higher educations like post-graduations and the PharmD, PhD, then we opt for a particular subject and we do that specialization course in that particular subject. So friends, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम कौन सी जॉब सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं और हम किस जॉब सेक्टर को अपना एज अ करियर चूज करेंगे आफ्टर वी कंप्लीट अवर B.Pharm और M.Pharm और डिप्लोमा और PhD और PharmD प्रोग्राम्स इन फार्मास्यूटिकल्स. सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है. दैट मीन्स हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा क्लू कर लिया होगा. तो आज का वीडियो इसके ऊपर है कि व्हाट ऑल जॉब सेक्टर्स आर हियर इन UAE, इन दुबई फॉर द फार्मेसी पीपल. क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या जॉब्स हैं और किन किन सेक्टर्स में वो जॉब्स हैं. So if you guys fall in any of those sectors, if you are working in any of those sectors, if you have experience in any of those sectors in your home country, तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, देन आप सोच सकते हैं कि आपको फ्यूचर में किस फील्ड को आपको अपना एज अ करियर चूज करना है आफ्टर योर B.Pharm completing, after you complete your B.Pharm or after completing your M.Pharm. So I have a big whole list of job categories here with me today. This is a whole list that I have prepared for you guys. And so friends, ये all depend करता है हम लोगों की qualifications के ऊपर. Like there are jobs which depend on our qualification as well as हम अपनी home country में किस सेक्टर में, किस फील्ड में काम कर रहे हैं. सपोज इफ वी हैव डन ओनली डिप्लोमा, वी आर नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट, वी आर नॉट अ ग्रेजुएट, वी आर ओनली डिप्लोमा इन फार्मेसी. तो यहाँ पर उसके लिए भी जॉब्स हैं, कई सारी जॉब्स हैं, बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन है मीन्स हायर पोजीशंस के लिए रिस्ट्रिक्शन है. इफ वी हैव डन बैचलर्स इन फार्मेसी, देन स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है और हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, पोजीशंस थोड़ी बढ़ जाती हैं
एज वेल एज हमारा जॉब सेक्टर का एरिया भी थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। इफ़ वी हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे हम फार्मेसी किए हों, चाहे हम MBA किए हों इन द हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स इन द और इन एनी हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो भी हमारे पास वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, वाइड रेंज ऑफ जॉब्स रहती हैं और वाइड रेंज ऑफ जॉब सेक्टर्स फील्ड रहता है कि हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन और आपने क्या ऑलरेडी चूज कर रखा है उसके ऊपर भी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इवन यू डोंट नो इन विच कैटेगरी यू फॉल एंड विच ऑल जॉब्स यू कैन अप्लाई फॉर। मे बी आप इंडिया में या अपनी दूसरे किसी होम कंट्री में एक जॉब कर रहे हैं, मे बी यहाँ पर उस एक जॉब के लिए 3-4 तरह के अलग अलग पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो आप उन सब में अपना लक ट्राई कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। So since this channel is all about pharmacy and pharmacists, so मैंने पहले सारे videos उसके ऊपर बहुत सारे बनाए हैं already, more than 20 videos are just on pharmacy and pharmacist. So let's start from there only. So सबसे पहले हम pharmacist की ही बात करते हैं। तो pharmacy अगर हमने की है डिप्लोमा या B.Pharm या M.Pharm, तीनों लेवल के क्वालिफिकेशंस के लिए हमारे पास जो यहाँ पे जॉब अवेलेबल है इन UAE, इन द एंटायर UAE, इन ऑल द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE, वो स्टार्ट होती है आपकी फार्मासिस्ट से, मूव ऑन टू असिस्टेंट फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इंचार्ज एज द नेम इंडिकेट्स, दैट इज द इंचार्ज ऑफ अ होल फार्मेसी, फार्मेसी मैनेजर, दैट इज द मैनेजर ऑफ द होल फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, warehouse pharmacist. This position is available in the warehouse of any big company, any big supplier company, as well as a big chain of pharmacy who owns here more than 100, 150, even more than 50. Even if they have less, just say like 15, 20, 25 pharmacies, in case if they have only this much, even they have their own warehouse, and there they have the position of assistant warehouse pharmacist as well as warehouse pharmacist. So for that also we need to have our pharmacist degree with us. तो ये कुछ जॉब कैटेगरीज हैं फार्मासिस्ट के लिए। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हो सकता है कि आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए जो कि आज फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस वीडियो के। Then we have area manager. We have area manager, friends. Big chain pharmacies में यहाँ पे क्या होता है कि इतना बड़ा, सपोज दुबई को ही ले लीजिए, तो इतना बड़ा दुबई है, ओके। सो इसमें कई सारी एरियाज हैं, जैसे हमारे अपनी जगह में भी होता है, एक सिटी होती है, उस सिटी के अंदर कई सारी एरियाज होती हैं, तो उसी तरह से दुबई है, दुबई के अंदर भी कई सारी एरियाज हैं। तो क्योंकि चेन फार्मेसीज हैं, मोर देन 100, 150, 200, 250 उन लोगों की फार्मेसीज हैं, सो दे गो फॉर द एरिया मैनेजर एज वेल। तो एरिया मैनेजर की पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए भी होती है, एज वेल एज नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड लोगों के लिए भी होती है। सो अगर आप लोग फार्मासिस्ट हैं तो भी आपका इस पोजीशन पे प्रमोशन होता है। कई सारी कंपनीज हैं आपको जो एरिया मैनेजर के तरह से प्रमोट कर देती हैं, आपको प्रमोशन मिल जाता है एंड यू बिकम द एरिया मैनेजर ऑफ योर ऑफ एंड अंडर यू कम सम फार्मेसीज इन विच डिपेंड्स ऑन विच एरिया इज given to you. So that is the area manager. And then we have promoters as well, and these promoters are also from the pharmacy background as well as from the non pharmacy background. और ये promoters होते हैं हमारी pharmacy में जो medicines के अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, जो भी प्रोडक्ट्स हमारी मेडिसिन में होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो हेल्थ केयर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हों, XYZ, all these kind of products in big chains of pharmacies which are in the malls, which are in the big city centers, big outlets. There they have the promoters as well, which do not which have nothing to do with the medicine section, but only look after the other FMCG and healthcare, other supplements and all those products. Then friends, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट की पोजीशन रहती है, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की पोजीशन होती है, रेगुलेटरी ऑफिसर की, रेगुलेटरी कोऑर्डिनेटर की, तो रेगुलेटरी अफेयर कोऑर्डिनेटर, रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर, इनकी पोजीशन रहती है। ये भी फार्मासिस्ट, अगर आपके पास कई जगह पे
कुछ कंपनीज यहाँ पर ऐसी भी हैं जहाँ पर अगर आपके पास DHA और MOH है तो ही वो उस तरह के रेगुलेटरी अफेयर्स की वहाँ पे पोजीशंस होती हैं, एंड दे वांट you to have MOH or DHA license with you. So friends, DHA and MOH फार्मासिस्ट को भी कई जगह पे रेगुलेटरी अफेयर्स की पोजीशंस के लिए अप्रोच किया जाता है, और कई जगह पे रेगुलेटरी अफेयर्स की पोजीशंस के लिए उन लोगों की डिमांड रहती है कि यू शुड हैव योर DHA और MOH लाइसेंस. Once even I was approached for a regulatory affair position in a company, and they require MOH pharmacist for that. I had cleared my interview, but due to some reasons I cannot join that position, and although I wanted to, but there were some reasons, my own personal reasons, that I could not join. So this I'm just telling you that if you are a pharmacist, you have opportunity in regulatory affairs as well, because they even ask for DHA and MOH license in many companies, but not in all companies. It is not mandatory, but in certain companies they have this criteria. So I just mentioned. So फार्माकोविजिलेंस में जॉब्स हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब्स हैं, जो कि रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट और रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर, इस तरह की पोजीशंस अवेलेबल होती हैं उनके लिए. Then friends, we have sales merchandiser. Sales merchandisers की पोजीशन होती हैं. This position is for non-pharmacy background people as well as for pharmacy background people. So अगर आप लोग डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो इस तरह की पोजीशंस के लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब्स मिल सकती हैं. Then we have drug and safety officer. This job is very close to the pharmacovigilance job because वो जॉब भी इसी से रिलेटेड है ऑलमोस्ट. So we have here drug and safety officer positions also available. Then we have business development managers in pharmaceutical companies. So we have pharma division manager position available, pharmaceutical field sales manager position available. Then we have pharmaceutical brand manager position available. So ये कुछ इस तरह की पोजीशंस हैं जो कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो कि डील कर रही हैं मेडिसिन के साथ, okay, which are importing medicines from outside, and we have here so many big pharmaceuticals which are not doing the manufacturing but which deal with the already manufactured products. So these are a kind of jobs which are available with those pharmaceutical companies, and there are many companies here which do that work. As well as apart from that, which are the manufacturing companies here, they do also have this kind of vacancies and this kind of job position available in their companies. तो ये दोनों तरफ है. अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे भी इस तरह की जॉब्स रहती हैं, and if it is a non manufacturing company which imports medicines from the other countries and sells here, supplies here in the whole UAE, they also have this kind of position available. Okay, so brand manager we have. Then we have regional sales manager, we have purchase executive. So if you have your experience in purchase department in the pharmaceutical company, you can go ahead with that. And even if you have experience in pharmacy company, in like you know about the product and everything, then also you can apply for this purchase officer or purchase executive positions. Then you have purchase manager position. Okay, in purchase manager, because big companies do not only have just one person for one position, so उनके पास categories होती हैं. एक manager होगा, उसके नीचे कुछ 2-3 और उनके assistant manager या फिर इस तरह की positions रहती हैं to assist the main manager of that for that position. Then you have purchase executive, purchase manager. Then the medical case manager. Then you have pharmaceutical product manager. Pharmaceutical product manager basically जो सप्लायर्स की फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे हैं, बहुत सारी हैं, उन कंपनीज में ये इस तरह की जॉब अवेलेबल रहती है. देन यू हैव मेडिकल ऑडिटर पोजीशन. देन यू हैव बायोमेडिकल इंजीनियर्स पोजीशन. And apart from this, we also have general manager position available in the companies. ये पोजीशन तो बहुत तरह की कंपनीज, लगभग सभी कंपनीज में होती है जनरल मैनेजर की.
इवन जो चेन फार्मेसीज हैं उनकी भी अपनी एक कोई हेल्थ केयर ग्रुप है, उसके अंडर में कई सारी चेन फार्मेसीज हैं, तो उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर ग्रुप का भी एक जनरल मैनेजर होगा। वो फार्मेसी बैकग्राउंड से भी हो सकता है, नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से भी हो सकता है, बट अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड में हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास फार्मेसी प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, and you have a good experience in business development, you have a good experience in marketing and all this kind of field, तो आप जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, because you can deal with we can deal with that position and you can do the work assigned to you in that position. So जनरल मैनेजर्स की पोजीशन होती है, हेड ऑफ सेल्स की पोजीशन होती है, हेड ऑफ प्रोडक्शन होता है, के सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सेल्स मर्चेंडाइजर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी अवेलेबल रहती हैं, एज वेल एज इफ इट इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बट डीलिंग विद द मेडिसिन दैट इज सप्लाइड ऑल ओवर द यूएई। नॉट ओनली मेडिसिन, एज आई सेड कि मेडिसिन के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ होता है फार्मेसी में, जैसे कि अगर जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है, द फर्स्ट वीडियो ऑन फार्मेसी इन विच आई हैड shown what all we have inside the pharmacy, तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी वो कंपनीज डील करती हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ भी, whether it's a हेल्थ केयर सप्लीमेंट और अ बेबी प्रोडक्ट और जिम रिलेटेड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स, सो ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो सारे उनसे डील करते हैं। सो ऑल द कंपनीज नॉट ओनली विद मेडिसिन, दे डील विद दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एंड दीज पोजिशंस आर अवेलेबल फॉर फार्मा बैकग्राउंड पीपल इवन इन दोज कंपनीज। देन वी हैव, अब हम अगर मूव करें प्रोडक्शन की तरफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहाँ पे मेडिसिन भी बनती हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑपरेटर्स की पोजीशन है, प्रोडक्शन हेड की पोजीशन रहती है, फार्मासिस्ट इन प्रोडक्शन ये भी एक पोजीशन है जो कि प्रोडक्शन हाउस में उनके रहती है। देन यू हैव क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, quality control officer, quality control analyst, you have production manager जो कि पूरे प्रोडक्शन टीम का मैनेजर होगा, packaging manager, as we all know there is a packaging section also, so this packaging manager can be a pharmaceutical background person or a non-pharmaceutical background person in case if he has experience in this particular field and if he know how to manage the packaging of medicines. एंड देन पैकेजिंग हेड पोजीशन इज ऑल्सो देयर, जो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो देयर दे हैव पैकेजिंग हेड पोजीशन अवेलेबल ऑल्सो। Then you have the chemist position, those people, this position, chemist position is not only for pharma people who have done in pharmaceutical chemistry, it is also for those people who have done MSc in chemistry and have experience in the pharmaceutical companies in India in the chemistry section, the chemist section, or in the quality control section, तो or in the section which is related to some this chemical and all, so वहाँ पर senior chemist की position इस तरह के लोगों के लिए भी है, who are not from B.Pharm M.Pharm, who have done MSc in chemistry, organic chemistry and all that. Then you have we have scientific office manager position. ये पोजीशंस कंपनीज में होती है, बट इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है DHA एंड MOH की। सो इफ़ यू आर अ DHA और यू आर MOH, यू हैव सम एक्सपीरियंस हियर इन UAE, इन दुबई, तो आप इस तरह की पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन यू आर गेटिंग एंड हाइक इन सैलरी यू आर गेटिंग। सो साइंटिफिक ऑफिस मैनेजर where the requirement is DHA and MOH. Then we have clinical safety specialist position. Then you have quality manager position, like quality analyst, like quality officer. This is the quality manager. And then regional safety officer position. So ये कुछ positions हैं जो कि हमारी pharmaceutical कंपनीज जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, उन कंपनीज में ये पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी जो पोजीशंस हम लोग की कंट्रीज में होती हैं, इन केस इफ आई मिस्ड हियर इन दिस लिस्ट, तो वो वहाँ पे भी होंगी ही। देन कम्स द इंश्योरेंस कंपनी जॉब। सो इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर फार्मेसी रिलेटेड लोगों को हायर करती है,
because they have to deal with all the medical terms, medicines and everything. So अगर उनके पास उस चीज़ की knowledge है, so this is a plus point for the company. So this is the reason that they hire person from pharmacy or healthcare background for working as a insurance coordinator, insurance officer, insurance advisor, claim officer and इंश्योरेंस टेली सेल्स. सो दिस काइंड ऑफ जॉब. जो मेरा एक वीडियो है इंश्योरेंस के ऊपर, मैंने ये वहाँ पे डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, नॉट इन टू मच डिटेल, बट इतने में डिस्कस किया है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा. एंड देन वी हैव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन. इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो ऑलमोस्ट डिटेल में है, इन विच आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब हियर इन दुबई and in any other emirate of UAE. The criteria and the things are all same. So मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन होती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन होती है, जो कि वी ऑल नो their work is to go to the pharmacies, their work is to meet the doctors and promote their product, their company product, whether it's medicines or non-medicines product, baby care products or XYZ products that I have already discussed previously many times and even in this video in the beginning. ओके, सो ये कुछ जॉब्स थी इंश्योरेंस में, एंड देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब्स. एंड नाउ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू यूनिवर्सिटी, वी ऑल्सो हैव लाइक हमारे अपने होम कंट्रीज में भी जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स हैं. नॉट एज मच एज वी हैव इन इंडिया, बट येस वी डू हैव हियर यूनिवर्सिटीज़. सो इन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की पोजीशंस रहती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स के लिए. सो नाउ मूविंग ऑन टू दैट. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन रहती है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन रहती है इन मेडिसिन, इन फार्माकोलॉजी एंड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो. जो भी हम लोगों के स्टडी फील्ड्स रहते हैं, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये एक ही तरह का रहता है यहाँ पर. A little bit of change in the language that we have there and that they have here. And then teaching assistant, तो teaching assistant की position भी यहाँ पे रहती है यूनिवर्सिटीज़ में. And then research की opportunities भी यहाँ पे होती हैं. As we all know, research इंडिया में भी काफ़ी है, और यहाँ पर और कंट्रीज़ में भी उनके कॉलेजेस में रिसर्च का है. एज वेल एज UAE में भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे फेलोशिप्स दी जाती है और रिसर्च की पोजीशंस रहती हैं. तो उनमें से कुछ पोजीशंस हैं जैसे कि मेडिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट की पोजीशन रहती है, जैसे कि मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन रहती है. सो स्पेशलिस्ट विल बी द हेड ऑफ द मेडिकल रिसर्च in that particular subject, in the particular area, depending on, and the medical research assistant will be assisting the specialist. And then we have research assistant positions also, like kind of change in the names, like हम अपनी जगह की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों के पास होता है GRF SRFs होते हैं, सीनियर research fellows and junior research fellows, as well as the PhD people who are doing PhD. So वहाँ पे कुछ और नाम है, यहाँ पे कुछ और नाम है. So इन लोगों को असिस्ट करने के लिए या टीचिंग के लिए, और जो यहाँ पे ऑलरेडी जो सीनियर लेवल का काम यहाँ पे चल रहा होता है उनको असिस्ट करने के लिए, तो रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट, इस तरह की पोजीशंस रहती हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की ऑलमोस्ट 60 से अबव जॉब कैटेगरीज की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है, ये आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी अपनी इस पूरी वीडियो में डिस्कस की है आप लोगों के साथ. सो अब आप सोच सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी ऑफ जॉब में फॉल करते हैं, कौन सी पोजीशन आपके को फिट बैठती है, और कौन सी पोजीशन में आप लोग इन फ्यूचर यहाँ पे आके अपना करियर बनाना चाहते हैं. So this video was only about the positions, the job categories, the job areas we have here in the healthcare section, particularly talking about the pharmaceutical sector. So जो भी हम लोगों हमारे pharmaceutical professionals हैं who are watching this video, so this video was for you all guys. So thanks for watching this video. I hope आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा. मैंने 60 से ज़्यादा जॉब्स कैटेगरीज आप लोगों के साथ आज डिस्कस की हैं, इज द टाइटल वाइज, नेम वाइज, जस्ट टू टेल यू कि ये जॉब्स यहाँ पे रहती हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इन द फ्यूचर. यू कैन मेक अप योर माइंड
to come here in the future and apply in these companies and apply for these positions. So please like and subscribe to my video and share with your friends who are in the pharmaceutical field. So thanks for watching the video, friends. I will come up with this kind of good informative videos in future as well. So stay tuned to my channel and to my videos. Thanks for watching.